So the pain you are going through right now will become your superpower when no one will ever hold the power to hurt you again, to be honest. Thank God मेरे साथ ये चीज़ हुई. Thank God वो भड़वा हुई या वो भड़वी मेरी लाइफ से निकल गई. Literally. I know whatever you are going through right now is something that can never be explained in words, which you never thought that could be possible because it was never ever expected. Whatever you are feeling right now एक ऐसी फीलिंग है ना जो कि कभी भी किसी को समझा ही नहीं जा सकती. मैं इतना ज़्यादा खुश था या खुश थी और अचानक से मेरे को एक मैसेज आता है या फिर मेरे को एक कॉल आता है that it's all over and the level of pain you go through is something which is not explainable to people and your friends at all. And सबसे ज़्यादा irritating part ये हो जाता है that they cannot even understand this even if you are trying to explain them in words. So you might be having certain kind of पता है breathlessness, anxiety attacks, chest में ना एक बहुत बुरा pressure feel हो रहा होगा, एक बहुत ही अजीब सा pain feel हो रहा होगा. अभी जो वो pain feel हो रहा है ना, it is one of the worst pain ever. It is a kind of pain जहाँ पे आप scream नहीं कर रहे होते, किसी को दिखा नहीं सकते. Like it is something that is going inside you and no one can ever understand that. You want to scream out, you want any sort of help, but you cannot get any sort of stuff to escape from that. In this video, I am going to tell you that what are the stuff that you can do to immediately and spontaneously reduce that level of pain of heartbreak that you are having and how to pass through those events, because I know whatever you are going through is going to pay off and you're going to be you are literally now in a process to become a better version of yourself. You are going to take some sort of rebirth where you will learn to control and handle your emotions very well. तो पहली चीज आपको ये करनी है that give no response. Literally शांत हो जाओ. Literally give no response to the person जिसने आपको cheat करा है, to be honest, because उस person को ये चीज पता है that you are attached, you are literally attached and उस person को पता है कि ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है या कुछ भी कर सकती है. He or she is hurt by me. तो वो person क्या करेगा, वो person ना वापस आने की कोशिश करेगा and you are in a phase of denial जहाँ पे अभी आप ना बहुत अच्छी चीजें देखने वाले उस person के बारे में, so that you can go back and escape this pain you are having right now. तो वो person आपको response करेगा, वो person आपको वैलिडेट करने की कोशिश करेगा that person is not wrong at all. तो आप जितना ज्यादा उस person को explain करने की कोशिश करोगे ना that तुमने मेरे साथ ऐसे करा, I loved you so much this and that, भाई you love that person a lot, तब भी आपको क्या मिला in return में, उस person ने क्या करा. That person is literally a characterless person, to be honest, because even after giving so much efforts to that person you didn't got anything in return and you deserve a lot. तो जितना आप उस person से argue करोगे ना, आपका बहुत ज्यादा चांस है, आप अभी इस फेज में हो, आपका बहुत ज्यादा चांस है कि आप उस पर्सन से वापस मैनिपुलेट हो जाओ. तो प्लीज डोंट गिव एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स. आई एम टेलिंग यू, लिटरली एकदम ना शांत हो जाओ. लाइक यू डिडंट इवन केयर, यू लिटरली डिडंट इवन केयर. आपको फर्क नहीं पड़ रहा. मतलब अब उस पर्सन को ना हमें वो चुल करवानी है कि मतलब हम रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ना, तो वो पर्सन अंदर से उसकी ईगो ट्रिगर होगी दैट जब आपको चोट लगती है ना तो आप ज्यादा रोते हो या फिर आप ज्यादा ना उस चीज के ऊपर सोचते हो, ठीक है, उस चीज के ऊपर एक्शन लेते हो, तो वो चीज आपको और ज्यादा हर्ट करती है. बट व्हेन यू ट्राई टू काम डाउन योरसेल्फ, तो वो चीज का ज्यादा चांस है कि वो काम डाउन होगी. तो जब आप आर्ग्यू करोगे, जब आप उससे फिर भी टच रखोगे बाय एनी मीन्स, और आप रखने वाले हो एंड दैट पर्सन नोज दैट, तो जब आप अपना टच पूरा हटा दोगे तो आप धीरे धीरे ना लाइक काम होते जाओगे, इमीडिएटली काम होते जाओगे. लाइक सो आपके मन में बहुत ज्यादा खुजली होने वाली है. यू विल बी ट्रिगर टू आई हैव टू आस्क हिम, आई हैव टू आस्क हर, मेरे को पूछना है उससे कि उसने ऐसा क्यों करा, व्हाट वाज द रीजन, मैंने उसे इतने एफर्ट्स दिए एंड ऑल. बेब, देयर इज नो बेनिफिट, लिटरली नो बेनिफिट ऑफ आस्किंग दैट पर्सन दिस क्वेश्चन बिकॉज दैट पर्सन हैज एक्चुअली चीटेड यू. दे डोंट केयर अबाउट यू एट ऑल, दे डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ वर्थ एंड यू डिजर्व अ लॉट, राइट? So just be very much like a ghost of a person, एकदम गायब, like you have no sort of touch with that person. Block them from social media, block them from everywhere and I'm telling you literally उन person को इतनी ज़्यादा चुल होगी ना कि ये person मेरे contact में नहीं है, उनको तड़पाना है. अब आपको literally उनको तड़पाना है that you are not giving shit to them anymore. and I'm literally telling you, जब आप इस चीज़ को कर दोगे ना, कट ऑफ कर दोगे, तो आप धीरे धीरे खुद काम होते जाओगे बिकॉज आपके पास अब आर्ग्यू करने के लिए कोई है नहीं. यू हैव क्रिएटेड अ बैरियर अराउंड यू. तो आप उस पर्सन को लिटरली कट ऑफ कर दो एंड यू विल सी द मैजिक वर्क. मुझे दूसरी चीज ना यार लिटरली इतनी ज्यादा क्रिंज लगती है कुछ लोगों में दैट वो ना लिटरली अरिजीत सिंह के सॉन्ग जैसे बन जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट. लाइक
Stop romanticizing, one sided वाला प्यार एंड what people do is I literally laugh on them कि मतलब वो क्या करेंगे, वो अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि यार तू ठीक स्टोरी लगा दो कि यार तू ठीक हो जा एंड ऑल, एंड या फिर वो खुद स्टोरी लगा देंगे, वो स्टेटस वाली जो शायरियाँ होती हैं ना ऑल कि मैं सैड हूँ एंड ऑल, एंड मतलब वो ना रोमांटिसाइज कर चुके हैं इस चीज़ को कि मैं एक दर्द में हूँ, मैं एक दर्द में जी रहा हूँ, पर मैं तुमसे तब भी प्यार करता रहूँगा चाहे मैं मर जाऊँ, तुम चाहे मेरा साथ दो या ना दो, आई एम गोना लव यू फॉर एवर टिल माई एटर्निटी एंड ऑल। भाई स्टॉप रोमांटिसाइजिंग दैट, मेरे को लिटरली हंसी आ रही है, एंड उस पर्सन को घंटा फर्क नहीं पड़ता दैट यू आर पुटिंग स्टोरीज, यू आर पुटिंग स्टेटस एंड यू आर शोइंग योर एटर्नल लव दैट यू हैव सीन इन टीवी सीरियल्स या फिर मूवीज में देखा है कि वो एक बंदा उसे लाइफ टाइम तक प्यार करता है। तो यार इसकी वजह से ना लोगों के दिमाग में एक इमेज बन चुकी है कि मतलब मैं चेस गेम ही खेलूंगा। भाई तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करा, लाइक लिटरली दे हैव लाइक स्पेंट सो मच of sacrifice on you and you are literally ruining everything। ओ भाई अब ना मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि ना तुम्हारे फिजिकल सिम्टम्स से रिलेटेड है। नाउ यू आर फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ चेस्ट पेन, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धक धक हो रहा होगा, बहुत भारी लग रहा होगा एंड चेस्ट पेन हो रहा होगा। तो इस चीज़ को डील करने के लिए पता है सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, यू विल बी गोइंग थ्रू अ हार्ड फेज नाउ। तो उस चीज़ को थोड़ा ओवरकम करने के लिए मैं बता रहा हूँ लिटरली फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट स्टार्ट गेटिंग बिजी। मतलब मैं सही कह रहा हूँ, मतलब अगर बैठे रहे ना एक जगह पे जहाँ पे आप सोच रहे हो या ओवर थिंक कर रहे हो, तो मैं लिटरली कह रहा हूँ यू विल फॉल डीप इन टू इट, यू विल लिटरली फॉल डीप इन टू इट। बट दिस इज द टाइम यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, इवन इफ यू डोंट फील लाइक गोइंग आउटसाइड और हैंगिंग आउट, यू हैव टू डू इट। उसको प्लीज करो। एंड मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी के पास अपना पैशन या कुछ ऐसा काम नहीं होता। एवरीवन यू शुड बी हैविंग गोल्स फॉर योरसेल्फ बिकॉज वही है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो मैं लिटरली कह रहा हूँ अपने आप को इतना ब्रूटली बिजी कर लो ना, इतना ब्रूटली बिजी कर लो। अपनी मम्मी को हक करो, अपने पापा को हक करो, अपने फ्रेंड्स को टाइटली हक करो, खुद को हक करो लिटरली, एंड यू विल लिटरली फील गुड विद दैट। एंड इससे क्या होगा, जो आपका चेस्ट पेन है ना वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। एंड आई एम गोना टेल यू टेक डीप ब्रेथ्स। ठीक है, ये तो बहुत ही बेतुका लग रहा होगा बट इट रियली वर्क्स टू बी ऑनेस्ट। शांत करना है खुद को, उस पर्सन से कट ऑफ करने के बाद शांत करना है खुद को। सो स्टार्ट गेटिंग बिजी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इज वो वाला सुना ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये इसी वजह से होता है बिकॉज जब वो पर्सन ना बिगड़ने की जगह खुद को सुधारने लगता है और खुद को और इम्प्रूव करने लगता है ना, दैट इज द बेस्ट रिवेंज यू कैन डू विद दैट पर्सन। बिकॉज मैं लिटरली कह रहा हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैंने अपने ब्रेकअप के बाद जब खुद को ग्रो करना शुरू करा ना, दैट गाय लिटरली टेक्सटेड मी आफ्टर दैट, एंड मेरे को लिटरली घंटा फर्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट। बट नाउ दैट गाय सीइंग माई वर्थ, एंड मतलब मेरे को नहीं दिखता, मेरे को तो वो बहुत एक नंबर का भड़वा लगता है टू बी ऑनेस्ट। वो भड़वा मेरे को कितना भी मैसेज करे, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। तो स्टार्ट ग्रोइंग योर सेल्फ, और मतलब जितना खुद को बिजी रखोगे ना और अपने पैशन को फॉलो करोगे, आई एम लिटरली टेलिंग यू, 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ता आपको चेस्ट पेन रहेगा, आपको रखा है, यू आर नॉट मेसिंग विद देम, मेसिंग अराउंड विद देम, तो वो चीज़ काफ़ी जल्दी लाइक लिटरली काफ़ी जल्दी काम डाउन होगी। सो इंडल्ज योर सेल्फ इन द एक्टिविटीज़ एंड स्पेंड टाइम विथ योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। सो वट एवर पेन यूर, अपने आप को ये चीज़ ज़रूर समझा देना कि ये वाला जो पेन है ना इज़ गोइंग टू टर्न यू इन टू अ वर्जन दैट यू हैव नेवर इमेजिन। बिकॉज जब इस फेज से यू विल मूव ऑन ना एंड यू विल लुक एट योर सेल्फ इन द पिक्चर्स एट दैट मोमेंट, यू विल लाइक लिटरली ये मैं था जो इतना मैनिपुलेट होता था, लाइक सीरियसली आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ। लाइक आपको ये लगेगा कि मैं कितना ज़्यादा बेटर हो गया हूँ इस चीज़ से। सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, ये एक ऐसा पर्सन बना देगा ना आपको जहाँ पे फ्यूचर में यू विल थिंक अबाउट ब्रिंगिंग एनी सॉर्ट ऑफ पर्सन इन योर लाइफ एवर अगेन, एंड इफ यू आर ब्रिंगिंग दैट पर्सन यू विल थिंक रैशनली एंड लॉजिकली टू बी ऑनेस्ट। सो दिस इज गोइंग टू turn you into a superhuman or something, yeah। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ फेज जहाँ पे ना आप अब सेल्फ लव सीखोगे। सेल्फ लव होता क्या है, लोग सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं, बट व्हाट इज सेल्फ लव एक्चुअली, जहाँ पे आप अपने पैशन को फॉलो करने लगोगे एंड यू विल बी लाइक अब मैं किसी को इतना प्रायोरिटी नहीं देने वाला हूँ, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देने वाला हूँ, एंड यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो यहाँ पे ना यू विल हैव पर्सपेक्टिव जहाँ पे आप ना लोगों को ब्लाइंडली देखना बंद कर दोगे एंड मतलब खुद के बारे में पहले सोचोगे। एंड खुद के बारे में पहले सोचना इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज जब आपने लोगों के लिए इतना ज़्यादा करा तो किसी ने आपके बारे में तो नहीं सोचा टू बी ऑनेस्ट। सो सेल्फ लव इज समथिंग यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस फेज एंड यू आर गोइंग टू लव योर सेल्फ एंड यू शुड लव योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ अ हग दैट यू आर सो स्ट्रॉन्ग कि इतना वर्थ रखने के बाद आप इतने
चूतिए से इंसान को, इतने भड़वे से इंसान को प्रायोरिटी दिया, यू डिजर्व समवन जो कि आपको भी वो चीज़ रिटर्न करके दे, एंड यू डिजर्व अ पर्सन जिसको आप ऐसे ही ट्रीटमेंट दो। तो उस ट्रीटमेंट को सबसे पहले खुद को दो, ठीक है। यू हैव टू फिल योर वॉइड योर बाय योरसेल्फ, बिकॉज हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। हमारे पास हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं हमारे इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। बिकॉज जब आप डेस्पिरेशन में कोई चीज़ चूज़ करते हो ना, तो हगी हुई चीज़ ही चूज़ करते हो, लिटरली फ्रैंकली सेइंग यू। तो जब खुद से फुलफिल्ड रहोगे तो यू विल बी लाइक कि हाँ, अब मैं सोच सकता हूँ कि उस पर्सन को लाइफ में लाना है कि नहीं, और नहीं भी आ रहा तो आई एम फुलफिल्ड विद माई सेल्फ, नो। तो सेल्फ लव इज समथिंग यू आर लिटरली गोइंग टू अंडरस्टैंड वॉट इट एक्चुअली इज। अदर थिंग इज़ दैट कि ना आपके जो फ्रेंड्स होंगे ना, वो बहुत ही बेतुकी से एडवाइसेस देंगे, एंड मैं लिटरली कह रहा हूँ, बिकॉज वो ना ऐसे फेज से या तो ना गुजरे होंगे या फिर अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश रह रहे होंगे। तो उनको प्लीज़ ये बातें ओवर शेयर ज़्यादा मत करना, बिकॉज दे आर लाइक कि ये कर ले वो कर ले, एंड पता आप ओवर शेयर करोगे, यू डोंट इवन रियलाइज कि वो इसको एज अ वीक पॉइंट लेके आपके मज़े लेंगे। आई एम लिटरली टेलिंग यू, वो इसका वीक पॉइंट बनाकर आपके मज़े लेने वाले हैं। तो दे विल बी लाइक, तू भी उस पार्टी में मिलियो उसके सामने, भाई जले पे नमक नहीं छिड़वाना, हमें उसे कट ऑफ करना है। तो अपने फ्रेंड्स को ना एक लिमिटेड लेवल पर, या फिर जो आपके सबसे क्लोज फ्रेंड है ना, यू जस्ट फील दैट यू आर वाइबिंग विद देम एंड दे रियली अंडरस्टैंड यू विथ योर फेशियल एक्सप्रेशंस। तो उनको बताओ दैट ये हुआ है, एंड डोंट टेक मच ऑफ सजेशंस, जस्ट रैंट। एंड कोई लॉजिकल सजेशन नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, बस अपने आप को हल्का करवाना है। सो जस्ट रैंट, ठीक है। जर्नलिंग करो प्लीज़, आई एम लिटरली सजेस्टिंग यू स्टार्ट जर्नलिंग, एंड खुद की फीलिंग्स को लिखो, बिकॉज यू हैव डायरी और दैट इज सम सॉर्ट ऑफ समथिंग दैट रियली डोंट जजेस यू। एंड प्लीज़ अपने इमोशंस को मत दबाना, बिकॉज वो आगे जाके इट विल टर्न इनटू अ पॉइजन। सो अच्छे से रैंट करो, अच्छे से ओवर शेयर करो, सिर्फ क्लोज फ्रेंड से, बाकी किसी भी फ्रेंड से कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सो धीरे धीरे ना यू विल ग्रेजुअली स्टार्ट बिकमिंग बेटर, एंड यू विल गेट रिड ऑफ these sort of pains very immediately, I'm telling you। बस उस पर्सन के पास अब वापस जाने का कोई चांस नहीं है। जितना ज़्यादा बैरियर रखोगे ना, उतना ज़्यादा कम मैनिपुलेट होने का चांस है। एंड आई नो यू गाइज आर लिटरली वेरी प्रिटी, एंड अपने दिल में थोड़ा सा जगह बनाओ, सो दैट यू कैन ब्रिंग मोर गुड पीपल इन। मैं हमेशा से यही कहता हूँ। सो thank you so much guys, I hope you really find this video very helpful, and I'll see you in the next one, and please अपना ध्यान रखिए and take care of yourself, you deserve all the love, you're not the least but you are the best, and don't compare yourself with anyone, and I love you guys, bye.